हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. तो अब देखो, चाइल्ड जो है राउंड अबाउट के पास खड़ा है, तो वो देख रहा है कि सारे लोग वहाँ से चल फिर रहे हैं, सब एकदम खुशी में हैं, सब हंस खेल रहे हैं। और बच्चों को वो राउंड अबाउट पे देखता है झूलते हुए, तो वो कहता है अपने पेरेंट्स से कि क्या मैं भी उस पे जा सकता हूँ प्लीज़ मम्मी पापा। तो अब उसे पता तो है नहीं कि वो खो चुका है। तो अब देखते हैं क्या आता है आगे। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो देखो, अब वो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब ही नहीं देता उसको। वो पीछे देखता है तो उसके पेरेंट्स नहीं होते। सामने आसपास दाहिने बाइने हर जगह देखता है, उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखते हैं। उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। A full deep cry rose within his right throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in a real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. तो देखो, अब वो रोने लगता है। जब उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। अब उसको डर लग रहा है, अब उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। वो रोता जाता है, इधर उधर जाता रहता है। उसके अंदर इतना डर हो गया है कि अब वो खो चुका है। वो पैनिक कर चुका है एकदम, उसके कपड़े एकदम मडी हो चुके हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। Having run to and fro in a rage of running, for a while he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. There was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो अब वह ऐसे ही रोते रोते चलता रहता है, तो उसे कुछ कुछ लोग दिखते हैं, औरत आदमी ये सब दिखते हैं, मेन वुमेन्स उसको चलते हुए दिखते हैं, बातें करते हुए दिखते हैं। तो वो उन सबको देखता है, लेकिन उसमें से उसके पेरेंट्स को उसे दिखते ही नहीं है, जो कि लाइफ और लाफ्टे की बातें कर रहे हो, लेकिन उसे तो कोई दिखता ही नहीं है उसके पेरेंट्स में से। तो देखते हैं अब आगे क्या हुआ। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and heavy shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot. He had not shrieked at the highest pitch of his voice, Mother, Father. A man in the shrinking crowd heard his cries, stopping with great difficulty, lifting him up in his arms. तो देखो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एंट्रेंस के पास पहुँची है। वहाँ इतनी भीड़ है कि एक दूसरे को चलने की भी जगह नहीं दी जा रही है, और वो बेचारा रोता जा रहा है, अपने पेरेंट्स के लिए पुकार रहा है। उसके बीच एक भला आदमी जो भी है, उसने उसकी आवाज़ सुनी और वो उसको रोकने गया रोने से, और उसको अपनी गोद में उठाया। और उससे अब देखते हैं क्या कहता है वो। How did you get here, child? Whose baby are you?
the man asked. As he steered clear of the mast, the child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो अब वो उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए हो, ठीक है। और वो अब तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है और वो अब और तेज़ी से रोने लग गया है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. तब वो आदमी उसको शांत करने की कोशिश करना चाहता है और उसको कहता है कि तुम क्या इस राउंड अबाउट पे एक हॉर्स की राइड लेना चाहते हो। तो इस बार तो वो और तेज़ से रोने लग गया और चिल्लाने लग गया और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो अब देखो वो जो आदमी है वो उसे स्नेक चार्मर के पास ले जाता है और उससे कहते क्या तुम इस म्यूज़िक को सुनना चाहते हो, ये अच्छा है ना। तब जो वो बच्चा अपने कान बंद कर लेता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो फिर वो जो आदमी है उसको बैलून्स के पास ले जाता है। वो सोचता है कि जो बैलून्स के ब्राइट कलर्स है वो उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अब तो वो उनकी तरफ देखता ही नहीं, आंखें बंद कर लेता है और तेज़ी से चिल्लाने लगता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? तो अब जो वो आदमी है उसको फ्लावर सेलर के पास ले जाता है और कहता है, तुम्हें खुशबू आ रही है फ्लावर्स की, क्या तुम चाहते हो उनकी एक माला तुम्हारे गले में लगा दूँ मैं, तुम्हें क्या चाहिए अपनी गला में माला लगाने के लिए वो। तो अब देखते हैं चाइल्ड का क्या रिप्लाई होता है। The child turned his nose away from the basket and retreated his sob, I want my mother, I want my father. तो अब जो है वो बच्चा अपनी नाक बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तो अब वो सोचता है कि अब उसे कुछ खिला देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ स्वीट का, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो फिर वो उसको स्वीट शॉप ले जाता है और कहते क्या तुम्हें कोई स्वीट्स चाहिए। तो जो अब बच्चा है वो अपना फेस टर्न करता है और रोते रोते कहता है, मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो ये जो स्टोरी है इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What were the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? तो देखो बच्चे ने तो बहुत सारी चीज़ें देखी फेयर पे, बैलून्स देखे, स्वीट शॉप देखी, टॉयज़ देखे और भी उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसने राउंड अबाउट देखा, स्नेक चार्मर देखा, लेकिन वो पीछे इसलिए मुड़ते क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें चाहिए। In the fair he want many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? तब उसे फेयर में तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें थी, उसको स्वीट्स चाहिए थी, फ्लावर का नेकलेस चाहिए था, उसको स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनना था, उसको बैलून्स चाहिए थे, उसको राउंड अबाउट पे झूलना था, लेकिन वो किसी का जवाब किए इंतज़ार किए बिना क्यों चला गया? क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे और उसे एक कॉशनरी कॉल देंगे कि यहाँ आ जाओ बच्चे, तो इसलिए उसने कुछ बोले ही बिना ही आगे बढ़ता गया। When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? तो देखो जब वो राउंड अबाउट के पास पहुँचा और उसने उससे अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या मैं इस पे झूल सकता हूँ, उसकी राइड ले सकता हूँ, तब उसको कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसे पता चल गया कि वो खो चुका है।
और जब उसकी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी तब हमें पता चलती है जब वो बस रोता रहता है और जब कोई इंसान उसे ये सब चीज़ें दे रहा होता है तो वो उनको लेता नहीं है. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी अब उसे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अब उसे इतना डर है कि अब वो खो चुका है. अब उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स चाहिए. What do you think happen in the end? Does the child find his parents? तो मुझे तो लगता है कि उसे अपने पेरेंट्स मिल जाएंगे. वो इंसान उसे पहुंचा ही देगा उसके पेरेंट्स के पास और वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को ले जाए बिना थोड़ी चले जाएंगे. वो एक भी पत्थर छोड़ेंगे क्या ढूंढने से पहले. तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए.